Okay, we are now going to find out electric potential from an example. ये एक चेक पॉइंट हो गया, छोटा सा एग्जांपल है, वेरी इजी एंड वेरी कंसेप्चुअल. These are let by question given that this 1 2 3 4 5 6 these are surfaces, a cross section of the surface. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि एक सरफेस, दो सरफेस, तीन चार पाँच ऐसे सरफेसेस हैं जिसमें एक सरफेस 90 वोल्ट पोटेंशियल है, एक सरफेस पे 80 वोल्ट पोटेंशियल, एंड ऑन वन सरफेस देयर इज 70 वोल्ट पोटेंशियल, एंड दिस इज 60 50 and 40 volt potential of each equipotential surfaces. Now equipotential means at every point the potential will be same, that is mean. Now we have 5 paths given by which an electron is moving. एक इलेक्ट्रॉन है जो जो पहले पाथ में, यानी कि एक 80 वोल्ट वाले पोटेंशियल से एक पाथ में मूव करता है, यानी कि ये पूरे 70 60 50 40 क्रॉस करता है, फिर वापस आता है 50 60 70 क्रॉस, यहाँ पर रुक जाता है, यानी कि ये इनिशियल तो 80 वोल्ट थी और फाइनली इज़ 70 वोल्ट थी. ओके, तो this is the path, and so the work done will, since work done path independent होती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है ये ऐसे होकर क्रॉस किया या वो फिर जैसे होकर गया हो, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखी जाएगी. तो इनिशियल 80 वोल्ट पे थी, फाइनल 70 वोल्ट पे थी, तो यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 80 वोल्ट पोटेंशियल एंड माइनस 70 वोल्ट पोटेंशियल, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, सॉरी. So initial potential it is on 80 volt and final it is on 70 volts. So actually this is the 10 volt difference. The potential difference is 10 volt. Okay, get it? In the second path the electron moves from this 80 volt to that 70. This is also 10. This is also a difference of 10 volt, a positive 10 volt potential difference. Potential difference is positive 10 volt. Okay, and the third path it moves around this way, and we see the initial and final there is a difference of 20 volts, 80 volt minus 60 volt, final minus initial minus final. So actually 60 minus 80 volt, this is a minus 20 volt. Actually this is the minus 20 volt potential will minus 20 volt. Actually potential is negative of the work done in a, and the displace and this is the work done on the charge. Actually potential is work done per unit charge. What we have seen in the last discussions. Then there's a fourth part on the path 4. This electron comes from this way. We see there is a difference, but actually in this case the initial position is at 60 volt and the final position is 70 volt. And we do even a final mass initial, this is a positive 10 volt. The potential difference is positive 10 volt, means the work done is negative, actually. Yeah, then we see how the work is negative here and the work is here positive, we see. And there's a path from move from 70 volt to the letting in the 80 volt, and finally 60 volt. Yeah, 70 minus 60, 60 minus 70, this is 10 volt difference, potential minus 10 volt or 10 volt potential difference means that has been decreased by 10 volt. So this is the 5 condition we see. Now let us come to the question. Now what was the question? First question, what is direction of electric field associated with surfaces, means with these surfaces what is the direction of the electric field. So हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है. कन्वेंशनली हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है. या इसको यूँ समझे कि पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल पर माना गया है और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल पर माना गया है. दिस कन्वेंशनली आई एम स्पीकिंग, सो इट विल बी राइट वर्ड, यानी कि दाहिने तरफ होगी, यानी कि इधर से शुरू होगी और इधर से जाएगी. ये तो कन्वेंशनली हो गई. Yeah, okay. If you go into deep, the how what is directional electric field? Actually, we see a potential. If a positive charge is there and it's creating an outward field,
and this is coming a force, and if you getting an electron in that field nearby, like this electron comes from under nearby, the work is a negative. So these are the thing, if you calculate the in the last sections, why the conventionally it is done that a higher potential to lower potential will be direction of the electric field. This is the same case where हमने देखा था कि हमने पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को लिया था, तो वहाँ ही वो तय था कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स हम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता है, दिस डज नॉट मीन ए क्वांटिटी और अमाउंट और एनीथिंग। डायरेक्शन मीन दिस इज अ डायरेक्शन, या टू जस्ट आइडेंटिफाई। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फॉर ईच पाथ, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव किया है, ट्रैवल किया है, इसके हर के पाथ में द क्वेश्चन इज द वर्क वी डू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इनकी जो काम हुआ है, वर्क हुआ है, वो पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है या ज़ीरो हुआ है। ठीक, तो वी सी द वर्क हेयर विल बी पॉजिटिव। हाउ? Potential is negative, actually difference, potential difference is negative, the work is positive. This simply stating the how this work is. If you want to see, you can see the difference. If you see this potential difference is work done per unit charge, you remember the last is work done per unit charge. Potential difference is negative of the work done per unit charge. Why? Because the work is negative of change in potential energy. Yeah, okay, you understand that. So in the later sections we have studied already. So we see this 1 2 3 5 path number 1, path number 2, path number 3 and path number 5. In all the path the potential is decreasing. Potential is decreasing 60 70 to 60, the 80 to this 60, and this 80 to 70 and this 80 to 70, the potential is decreasing. Since the potential is decreasing, यानी potential कम हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब इसको हम दूसरे तरह से समझते हैं। इधर पोटेंशियल ज़्यादा, इधर पॉजिटिव चार्ज थे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, यानी कि हायर पोटेंशियल लो पोटेंशियल, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, इधर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, यानी पॉजिटिव चार्ज से इन्फ्लुएंस इधर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इधर पोटेंशियल। अब इधर साइड पॉजिटिव चार्ज, आप एक इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लाएंगे तो ये तो फास्टली वर्क करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा खुद। एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम इधर ले गया, यानी कि दूर ले गया, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज से दूर ले जा रहे होंगे तो एक पॉजिटिव फोर्स वर्क करा रहे होंगे उस पर, क्योंकि उस पर काम, क्योंकि अब ये कुछ ऐसा हो गया कि भाई इसको तो ये पसंद करता है, तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, विच इज नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव को दिखाया जा रहा है कि ये बाहर की तरफ यहाँ तक आ गया, बाहर की तरफ भाग रहा है, इसका इससे दूर भाग रहा है। जब दूर भाग रहा है इसका मतलब है कि कोई वर्क एक्स्ट्रा कराना पड़ रहा होगा, पॉजिटिव वर्क। और इस केस में क्या है, वो सारी सब केसेस में ऐसे समझेंगे। इस केस में क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, यानी कि 60 वोल्ट से 70 वोल्ट गए, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो प्लस 10 वोल्ट का आ रहा है, यानी कि प्लस 10 इंक्रीजिंग इन 10 वोल्ट पोटेंशियल, यानी कि 60 वोल्ट से 70 वोल्ट हो गया। जो पोटेंशियल इज डिफरेंस इज पॉजिटिव, द वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे समझे कि एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये यहाँ से ऐसे गया, यानी कि इधर की तरफ गया, इधर की तरफ यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया। जब पॉजिटिव चार्ज गया तो वर्क कराना नहीं था, वो तो ऑटोमेटिक वो खींच रहा था। इसका मतलब वो खींच रहा था ऑटोमेटिक, कोई नहीं कि आप जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, खींचते चला जा रहा है, यानी कि आपकी तरफ से तो वर्क नेगेटिव हो गया। नहीं कि बाहर से कोई वर्क तो उस पर कराया नहीं गया, जो कि उसको बाहर से कोई वर्क उस पर कराया नहीं गया, बल्कि वो तो अपने आप ही इसमें खींच गया अंदर की तरफ। दैट इज मीनिंग व्हाई द वर्क इज नेगेटिव हेयर मीन्स। And so you did answer that 1 2 3 5 will positive work and 4 will be have the negative work. Now path number 4. Okay, now the third question, rank paths according to work we do, यानी कि जो जितने भी पाथ्स, ये पांचों पाथ्स से इसमें क्या कितना, अभी तो मैंने बताया कि हाँ कि इसमें पॉजिटिव वर्क हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ। अब इसमें कहना है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा काम किस में हुआ, सबसे कम काम किस में हुआ है। अब आते हैं
अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा काम तो इसी में हो रहा है, यानी कि ये 60 वोल्ट से 60 वोल्ट तक लाया गया इसको, इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 20 वोल्ट का डिफरेंस है पोटेंशियल का। यानी कि जब पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा किया गया इसका मतलब वर्क भी ज़्यादा किया गया होगा। और चूंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव की में है तो वर्क पॉजिटिवली ज़्यादा किया गया है। सो एट द इन द थर्ड पार्ट द वर्क इज द हाइएस्ट, and in the first we see only 10 volt difference decreasing, 10 volt difference decreasing, 10 volt difference decreasing in the all the three cases, the 1 2 and 5, the 10 volt decreasing, यानी कि 10 यानी कि 10 टाइम 10 पॉइंट्स वर्क इज इंक्रीजिंग 10 times, actually 10 to the 10 value the potential has been decreased in all the three, यानी कि तो by 10 the work will be increased only। तो यहाँ तो 20 का डिफरेंस है, यहाँ 10 ही का डिफरेंस, यानी कि सबसे बड़ा तो ज़्यादा वर्क तो हो गया पॉजिटिव वर्क इस थर्ड वाले केस में। और उसके बाद जो वर्क इन सब में टाई अप हो गया, यानी कि बराबर वर्क हुआ है, वन में भी बड़ा एक जितना वर्क हो उतना टू वाले पाथ में वर्क हो उतना ही 5 वाले पाथ में वर्क हुआ है। अब पाथ चूँकि वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि कितना कम, यानी कि 10 वोल्ट ही का डिफरेंस आया है। हाँ, इसमें एक पोटेंशियल घटी है, यानी कि वर्क पॉजिटिव हुआ है और बाय द वैल्यू ऑफ 10, तो ये इससे कम, यानी कि ये सेकंड नंबर पर आ जाएगी, टाइप कर जाएगी। और सबसे कम किसका होगा, अब लास्ट एक यही बचा, ये वाला, जिसमें कि 10 वोल्ट इंक्रीज की है पोटेंशियल, यानी कि नेगेटिव वर्क 10 बाय द 10 वैल्यू द वर्क हैज़ बीन डिक्रीज्ड। So the minimum work will be at in the path 4 and the maximum will be at the path 3, and at 1 to 5 path it will tie up, यानी बराबर हो जाएगी। चलिए, so अब ये वो चीज़ थी जो मैंने पहले समझा चुका था, ये वो लिखा है मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर पोटेंशियल की जाने की तरफ, मतलब ये हो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जा रहे हैं, कि कन्वेंशनली उसको हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफाइन किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी कंसेप्चुअल एंड गुड टू अंडरस्टैंड, एंड होप यू विल गेट इट एंड आस्क मी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस एंड गिव मी सजेशंस, एंड थैंक यू एंड वेलकम टू इजी फिजिक्स बाय साइम।